اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صبر، استقامت، عدل اور دین اسلام کی سربلندی کی عظیم اور لاسوال داستان۔ شہدائے کربلا کو سلام۔ ملک بھر میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی یاد میں یوم عاشور پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور سے، جہانگیر خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جہانگیر، آپ بتائیے گا سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور ساتھ ہی جلوس کا روٹ کیا ہوگا؟ جی یوم عاشور کا مرکزی جلوس اندرون شہر نثار حویلی سے برآمد ہو چکا ہے، اور اس جلوس کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو 5000 سے زائد پولیس اہلکار صرف اس جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر آج لاہور میں 45 عزاداری کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جن کی سیکیورٹی کے لیے 11000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس جو ہے اندرون شہر سے ہوتا ہوا بھاٹی گیٹ سے باہر نکلے گا اور پھر کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ اس تمام تر روٹ پر آنے والی تمام مارکیٹس، کاروباری مراکز آج بند رہیں گے، جبکہ اس طرف آنے والی جو ٹریفک ہے اس کا داخلہ بھی بند کیا گیا ہے۔ بیریئرز اور کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کلوز سرکٹ کیمروں کی مدد سے جلوس کی جو ہے براہ راست مانیٹرنگ جاری ہے۔ اضافی پورٹیبل کیمراز سیف سٹی کی جانب سے انسٹال کیے گئے ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز پر پولیس اہلکار تعینات ہیں اور اس جلوس کی جو ہے وہ ڈرون سرویلنس بھی جاری ہے۔ موبائل فون سروس جو ہے وہ معطل نہیں کی گئی اور نہ ہی انٹرنیٹ سروس معطل ہے، البتہ چونکہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور اس پر عمل درآمد سختی سے یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ عام رکشے جو ہیں وہ آج جلوس سے ملحقہ شاہراہوں پر بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عام ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ ایک موریا پل سے ہی بند کر دیا گیا اور وہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ وہاں سے پیدل جو ہے یا اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ پارکنگ میں پارک کرنے کے بعد عزادار یا شرکاء اس جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلوس کے ختم ہونے کے بعد عزاداروں کے واپس جانے تک سیکیورٹی اہلکار اپنے اپنے ڈیوٹی پوائنٹس پر موجود رہیں گے۔ وقتاً فوقتاً اعلیٰ پولیس حکام بھی اس جلوس کی سیکیورٹی کا معائنہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ انتظامات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد کے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ پلان جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 1 ماہ تک اس پلان پر جو ہے وہ کام کیا جاتا رہا اور اس سے ملحقہ جو آبادیاں ہیں وہاں پر سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ اضافی ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ آج تعینات کیے گئے ہیں۔ اس جلوس کے روٹ پر ٹریفک کا پہیہ رما رکھنے کے لیے 800 ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور مختلف پوائنٹس پر ڈائیورجنز لگا دی گئی ہیں تاکہ جو روڈ یوزرز ہیں یا جو راہگیر ہیں ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک ایڈوائزری بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کی گئی ہے جس کے مطابق سرکولر روڈ اور اس کے علاوہ اندرون شہر کی جانب آنے والے جو افراد ہیں ان کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کی یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر آج ان روٹس کی جانب سفر مت کریں اور متبادل راستے اختیار کریں۔ جن افراد نے شاہدرہ جانا ہے ان کے لیے یہ ایڈوائزری ہے کہ وہ اسٹیشن سے جو ہے وہ ایک موریا پل کی جانب جاری کر دیا گیا ہے۔ جہانگیر بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جہانگیر ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ راولپنڈی کیا رخ کرتے ہیں، عثمان جاوید سے جانتے ہیں۔ عثمان جاوید بتائیے گا یہاں سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس کب اور کہاں سے برآمد ہوگا؟ دیکھیں راولپنڈی میں تقریباً 350 سے زائد چھوٹے اور بڑے یوم عاشور کے موقع پر جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی امام بارگاہ کرنل مقبول امام بارگاہ سے اب سے کچھ دیر بعد ایک مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہوگا جس میں راولپنڈی شہر کے مختلف چھوٹے اور بڑے جلوس جو ہیں اس جلوس میں شامل ہوں گے۔ لیکن میں جس مقام پر موجود ہوں یہ عسکر مال چوک کا مقام ہے۔ یہاں پر امام بارگاہ گلگت بلتستانیہ سے جلوس برآمد ہوگا جو کہ اپنے روایتی رستوں پر گامزن ہوگا، اور میں جس مقام پر موجود ہوں یہاں پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور پھر نماز ظہرین کے بعد جو اگلا جلوس ہوگا وہ امام بارگاہ یادگار حسین سے برآمد ہونے والا جلوس گلگت بلتستان امام بارگاہ سے برآمد ہونے والے جلوس میں شامل ہوگا، اور یہ وہ جلوس ہے راولپنڈی کا واحد جلوس ہے جو گلگت بلتستانیہ امام بارگاہ یعنی جس امام بارگاہ سے برآمد ہوتا ہے اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اور جلوس جو ہے وہ جو گلگت بلتستانیہ امام بارگاہ سے برآمد ہونا ہے وہ تقریباً 12 سوا 12
के करीब जुलूस बरामद होगा और फिर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और फिर उसके बाद इमाम बारगाह यादगार हुसैन से बरामद होने वाला जुलूस इस जुलूस में शामिल होगा, जो कि अपने रवायती रस्तों की तरफ गामज़न होगा और फिर बन्नी चौक के मकाम से ये जुलूस टर्न करेगा और फिर ये असगर माल चौक से होता हुआ तकरीबन रात 8 बजे यहाँ गिलगित बल्तिस्तानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जुलूस के मुख्तलिफ दाखिली रस्तों पर भी तैनात हैं, खारजी रस्तों पर भी तैनात हैं और इसके साथ साथ जुलूस के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्नाइपर जो है वो भी तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पर हाई रूफ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ CCTV कैमरास भी तैनात किए गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जुलूस की निगरानी की जा रही है। और इसके साथ साथ जो आला अफसरान हैं वो भी वक्तन फवक्तन यहाँ पर जुलूस के रस्तों पर सिक्योरिटी के बहुत ही फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख करते हैं। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। शहाब, आप बताइएगा कि मरकजी जुलूस कहाँ से बरामद होगा, क्या वक्त होगा और साथ ही सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी देखिए, पेशावर में आज योम आशूरा के कुल 12 जुलूस होने हैं और जिसका प्लान मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। मरकज़ी जुलूस का दिन 11 बजे का वक्त दिया गया था, जो कि इस वक्त सैयद आगा रिजवी शाह इमाम बारगाह से जो है वो बरामद होना शुरू हो चुका है। ये जुलूस अंदरून शहर से होते हुए कुहाट सिटी रोड से होते हुए इसी इमाम बारगाह पर शाम 4:30 बजे तक इख्तिताम पजीर होगा। इसी के साथ साथ 5 मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस भी मुनक़िद होंगे, जिसके लिए मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। और इस मरकज़ी जुलूस के लिए CCPO पेशावर SSP ऑपरेशन ख़ुद भी मौके पर मौजूद है और इसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। जुलूस के तमाम अतराफ़ में मोबाइल सर्विस को मुअत्तल किया गया है, जबकि जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। इसी के साथ साथ सेफ सिटी के जो कैमरे हैं और ड्रोन कैमरे हैं उसकी मदद से तमाम तर जितने भी जुलूस होने हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है। पाक फ़ौज सिक्योरिटी के दीगर इदारे भी इसके हमरा मौजूद है। इनके साथ साथ रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर जुलूस के तमाम अतराफ़ पर मौके पर मौजूद है। उनके एम्बुलेंसेस भी जुलूस के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। जितने भी इसमें किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़यात होते हैं उसके निपटने के लिए दीगर जो तंजीमें हैं फलाही वो भी यहाँ पर मौजूद है और जितने भी जुलूस के अतराफ़ है तमाम तर अतराफ़ को जो रास्ते हैं उसको बंद किया गया है और जितने भी अतराफ़ हैं उसको डाइवर्शंस किए बनाया गया है। जितने भी सिटी के साइड पर लोग जाते हैं उनको रिंग रोड का बताया गया है, वो रास्ते वो चूज़ करते हैं सफ़र के लिए। और तमाम तर सिक्योरिटी की जो सख्त तरीन सूरत हाल है उसके जायज़ा लेने के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद भी जितने भी सिक्योरिटी रूम्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर जितने भी कैमरे शहर में जगह जगह पर लगाए गए हैं, तमाम तर कैमरों की मदद से तमाम तर जुलूसों के और तमाम तर जितने भी मकामात पर मजालिस हो रहे हैं उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है। जी ठीक है शहाब, साथ ही मौजूद रहेगा। क्वेटा का रुख करते हैं। नूर, आप बताइए यहाँ पर कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं सिक्योरिटी के और मरकज़ी जुलूस रवां दवा है अपने मुकर्रर रास्तों पे? आज ही कोयटा में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड और तोगी रोड से होता हुआ इस वक्त बादशाह खान चौक पे पहुंच चुका है, जबकि जो उसके दीगर दस्ते हैं उनकी भी आमद का सिलसिला जारी है। और जो इसके अलावा जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है 10,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो FC के एहलकार हैं वो भी जो है जुलूस की निगरानी पर मामूर है। इसके अलावा पाक फ़ौज के दस्ते भी जो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो शहर के जो दीगर जो रास्ते हैं, खारजी रास्ते हैं और दाखिली रास्ते हैं, उन पर भी स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। और जो जुलूस को आने और जाने वाले रास्ते हैं वो भी जो है मुकम्मल तौर पर रुकावटें खड़ी कर सील कर दिए गए हैं। जुलूस जो है तकरीबन 12:30 बजे के करीब बादशाह खान चौक पर मुकम्मल पहुंच जाएगा, जहां पर एक मजालिस का एहतमाम किया जाएगा और यहाँ पे उलमाए कराम जो है शोहदाए करबला के जो उनकी जो शोहदा हैं उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया जाएगा और यहाँ पर जो वाक़या करबला है उस पर मुफस्सिल जो है रोशनी डाली जाएगी। जुलूस जो है यहाँ से जब बादशाह खान चौक पहुँच जाएगा, इसके बाद यहाँ लियाकत बाज़ार, प्रिंस रोड और इस तरह सईद अहमद खान रोड से होता हुआ दोबारा नमाज मगरिब के बाद जो है वो अलमदार रोड पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इसके अलावा जो शहर की जो बड़ी ऊँची इमारतें हैं वहाँ पर भी जो है स्नैपर्स को तैनात किया गया है और जो है वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और इसके अलावा शुरका की जो जुलूस की शुरू
चुका है। उनकी सहूलत के लिए जगह जगह पे ठंडे पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं ताकि उन्हें जो है वो इस गर्म मौसम में कुछ राहत फराम हो सके। इसके अलावा फलाई तंजीमों की जानिब से यहाँ पर जो है ब्लड बैंक और दीगर जो है वो कैंप्स भी कायम किए गए हैं। जी सही, कैंप्स भी कायम किए गए हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन किया है मकसूद चौहान ने। मकसूद, आप बताइएगा कि यौम आशूर का मातमी जुलूस कहाँ से बरामद होगा और कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा? मुल्तान में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है और मुल्तान में यौम आशूर का दूसरा मरकज़ी मातमी जुलूस लाल शाह से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन घंटाघर चौक पर अदा करेगा, जिसके बाद ये रवायती रास्तों से होता हुआ बाद नमाज मगरिब शाह शमस तब्रेज़ इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी डाइवर्जन प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। जो शहर की ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं, जबकि जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। ख़वातीन अज़ादार के लिए अलग से वॉक थ्रू गेट बनाए गए हैं। तमाम तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जो रेंजर्स हैं, पाक आर्मी है, उनकी भी मामनत जो है इसमें हासिल की गई है। और इसके साथ साथ जो जुलूस के रूट्स हैं वहाँ पर नज़र न्याज और सबील का भी जो है वो ख़ास एहतमाम किया गया का भी एहतमाम किया गया है। बहुत शुक्रिया मकसूद, हमें अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आज दिन भर आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे जुलूस के मुकर्रर रास्तों के हवाले से, सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से। फ़िलहाल शुक्रिया उनका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों और हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सब्र इस्तकामत को ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि शहदाए करबला और अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान और अक़ीदे का लाजमी हिस्सा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम कुर्बानी थी। वाक़या करबला इंसानियत को इंसाफ, हक और उसूलों पर कायम रहने का दर्स देता है। मरीम नवाज़ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोशन तालीमात पर अमल करते हुए इंसाफ, सब्र, इसार और हक गोई को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया जाए। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से कुछ देर बाद बरामद होगा। शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजार कर अंदर जाने दिया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावड़ से। जी इम्तियाज़, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से अब से कुछ देर बाद जो है बरामद होगा। अज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद जो है जुलूस में जो है छोड़ा जा रहा है। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवान भी जो है स्टैंड बाय में मौजूद हैं। दूसरी जानब जो मरकज़ी मातमी जुलूस का गुज़रगाह है, वहाँ पर आने वाले और जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारें और कनातें लगाकर जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि जो है 50 से ज़ायद CCTV कैमरास जो है वो लगाकर और जुलूस को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए बुलंद व बाला इमारतों पर शूटर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास में यौम आशूर पर 125 मजालिस और 25 जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी मातमी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह से बरामद हो गया। जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहादाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीरपुर खास ज़िले भर में आज कुल 25 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद होने हैं, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए अपनी मुतलका इमाम बारगाहों या दरगाहों पर इख्तिताम पजीर होने। लेकिन मीरपुर खास शहर के जो मरकजी मातमी जुलूस हैं वो मेरे अकब के अंदर मौजूद दरगाह मक्खन शाह यहाँ पहुँच कर इख्तिताम पजीर होने हैं। जबकि आज मीरपुर खास में पहला मातमी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह सेटेलाइट हाउस से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। वो जुलूस मुख्तलिफ मुकामात से होता हुआ इसी दरगाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि दोपहर के बाद जो है वो मीरपुर खास शहर के मुख्तलिफ मुकामात से जुलूस बरामद होंगे और शाम के औकात में मार्केट चौक पर शाम गरीबा बर्पा करने के बाद वो जुलूस इसी दरगाह पर पहुंचेगा और यहाँ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मीरपुर खास में पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के जवान तैनात किए गए हैं। स्नाइपर्स को भी जो है वो ऊंची इमारतों पर तैनात किया गया है। मीरपुर खास शहर के अंदर तमाम तर जुलूस नमाज मगरिबैन के बाद जो है वो दरगाह मक्खन शाह पहुँच इख्तिताम पजीर होंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। सादिक़ाबाद में इमाम बारगाह क़स्र रुबाब से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवान दवा है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा समा नदीम ज़िया से। जी नदीम, बताइए।
जी बिल्कुल, सादिकाबाद में भी 10 मुहर्रम यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह कसर अरबाब से बरामद हो गया है। जुलूस में शामिल आज़ादरान नोहा खानी, सीना कुबी और जंजीर जनी करते हुए अपनी मंजिल की जानब रवा दवा हैं। ये जुलूस अपने रवायती रास्तों जमालदीन वाली रोड, गौसिया चौक, अमीर माविया चौक और पंजाब सैनमा रोड से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह कसर पंतर पाक में पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। अगर जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सिविल डिफेंस के 300 से ज़ायद एहलकार जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस की मॉनिटरिंग जो है सर्विलेंस कैमरों और CCTV कैमरों के ज़रिए की जा रही है, जबकि ये जुलूस जो है मगरब के टाइम मरकज़ी इमाम बारगाह में पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा में यौम आशूर के जुलूस अपनी अपनी मनाजिल की तरफ रवा दवा है। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नदीम खान से, जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के साथ मौजूद है। जी नदीम, बताइएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह सरगोदा में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस वक्त ज़िला भर में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे ज़िले में इस वक्त बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। हमने पूरे जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज़ायद कैमरे हमारे इंस्टॉल्ड हैं, सेफ सिटी के साथ भी, और हमने 300 से ज़्यादा मेटल डिटेक्टर्स और पूरा सेफ्टी का इंतज़ाम किया हुआ है। और तमाम ज़ायरीन के लिए और हमने ठंडे पानी की सबिलें और गवर्नमेंट की तरफ से हमने सबिलों का इंतज़ाम भी किया, मोबाइल टॉयलेट्स का भी इंतज़ाम है। पूरा फोकस हमारा ये है कि जो यौम आशूर का दिन है इसमें हम जितनी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें मनाने वालों को, वो हमसे करेंगे। तमाम जो हसास जुलूस और मजालिस हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे काम करेगा और अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुआविन खुसूसी बराए इंस्पेक्शन टीम शुएब मिर्ज़ा ने सरगोदा में मरकज़ी जुलूस का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO और DPO भी मौजूद थे। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर नाफिज 3 टियर सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा लिया। जुलूस के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी हिसार, पुलिस नफरी, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स की तनसीब का मुआयना किया। उन्होंने अज़ादाराने अहले बैत के लिए कायम ठंडे पानी की सबीलों, तिबी सहूलियात, सफाई सुथराई, गर्मी से बचाव के इक़दामात, रात के वक्त रोशनी के इंतजामात और बिजली की मुमकिना बंदिश की सूरत में मुतबादिल पावर बैकअप का भी जायज़ा लिया। मुआविन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा ने DC कॉम्प्लेक्स में कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा किया और ज़िले भर में जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए इंतजामात का मुआयना किया। मुआविन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी और फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल मुतहरिक हैं। वज़ीराबाद में यौम आशूर पर 43 जुलूस और 38 मजालिस अज़ाम मुनक्किद होंगी। 5 जुलूस कैटेगरी A जबकि 38 जुलूस कैटेगरी C में शामिल है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद वकास हाशमी। जी वकास, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, यौम आशूरा आज 10 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सर्कल वज़ीराबाद में 43 जुलूस और 38 मजालिस जो है वो मुनक्कद होगी। A कैटेगरी के जुलूस जो हैं वो 5 होंगे, जबकि 38 जुलूस जो है वो C कैटेगरी के शामिल हैं। वज़ीराबाद शहर के 3 मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह गालिब शाह, इमाम बारगाह कसर सकीना और इमाम बारगाह शाह सदक से जो है वो बरामद होंगे। शहर भर में सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। पाक फौज रेंजर की जो नफरी भी मौजूद है। मुकामी इंतजामिया भी जो है वो सिविल डिफेंस और दीगर इदारे जो है वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसी तरह से रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, वासा और बल्दिया और सुथरा पंजाब की टीमें भी जो है वो हाई अलर्ट हैं। जी।